So welcome, good evening to the students. Today this is a very important topic of the series of this bending stress of the beam. और आज जो मेरा लेक्चर है, दिस इज a very important lecture, very interesting lecture. इसमें आज हम कवर करेंगे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. तो आज जो मेरा टॉपिक है, दिस इज द बीम of uniform strength. Beam of uniform strength. This is very important topic in this series of bending stress. This topic that is often asked the theory questions from this topic. और ये एक बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई थिंक टुडे यू विल जस्ट गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. अब फर्स्ट हमारा ये है डेफिनेशन कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है. बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, व्हाट डज इट मीन? बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? ए बीम इज सेड टू बी ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम स्ट्रेस at, or you can say throughout the length of the beam. When there is a maximum stress throughout the length of the beam, this is called the beam of uniform strength. You understand? So beam of uniform subjected to the same maximum bending stress. तो beam of, इसका definition क्या है? इसका definition लिख लेते हैं. Beam of uniform strength means that beam of uniform strength means that the beam is subjected to the same maximum bending, same maximum bending stress throughout its length. You understand? So just understand this. What is the beam of uniform strength? इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है कि एक बीम को हम तभी हम बोल सकते हैं कि ये बीम जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है अगर उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा मैक्सिमम. यू कैन से बेंडिंग स्ट्रेस मीन्स सिग्मा मैक्सिमम. जो सिग्मा मैक्सिमम है बीम का थ्रू आउट इट्स लेंथ दैट शुड बी सेम. वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. इफ दैट कंडीशन अराइजेस यू कैन से दैट दिस बीम इज ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. Let us say that suppose we have a beam of the uniform cross section. Suppose this is a beam of uniform cross section. Beam है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है. से आई एम जस्ट कंसिडरिंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम और थ्रू आउट इट्स लेंथ इट्स क्रॉस सेक्शन इज सेम. यू अंडरस्टैंड? तो इसका जो थ्रू आउट लेंथ जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सेम है. So it is having a same cross section. You understand? So if I will consider, suppose this is a section. If I will consider that at this section you can say the maximum bending stress is sigma maximum. If I will consider this section, the maximum bending stress,
this sigma maximum, that is sigma maximum. So you can say that at any section of the beam throughout its length, its bending stress is same. Suppose अगर ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस सपोज करो यहाँ पे 400 MPa है, तो जहां पर भी कितना होगा 400 MPa, और जहां पर भी कितना होगा 400 MPa. So you can say that the maximum bending stress at any section, at every section of the beam, that is same. So this is the definition of the beam of uniform strength. तो beam of uniform strength आपको क्लियर हो गया कि beam of uniform strength क्या है. beam of uniform strength, उस beam को हम बोलते हैं, उस beam को कहते हैं जिस beam में at any section of the beam, or you can say throughout the length of the beam, जितना beam का length होगा, throughout of its length, its bending stress is same. You understand? अगर उसका bending stress same है तो so that beam is called the beam of uniform strength. You understand? So let us that beam is called the beam of uniform strength. तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब हुआ बेंडिंग स्ट्रेस is constant. When bending stress is constant throughout its length, so this is your beam of uniform strength when bending stress is constant throughout its length. तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स लेंथ. सो दिस इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. नाउ द अदर थिंग्स इज दैट हाउ वी विल गेट द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. सपोज करो अगर हमें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हाउ वी विल गेट द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. सो हमें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किस तरीके से कैसे मिलेगी, हाउ वी विल गेट दैट, लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज वी विल कंसिडर ए बीम, ये आपका बीम है, राइट. सो दिस इज योर बीम, that beam is having the uniform cross section. You can say that is the rectangular cross section. I am just considering here the rectangular cross section, right? There are so many cross sections, circular cross sections, rectangular cross section, T section, I section, but I am just simplifying the things. और simplify के लिए मैं rectangular cross section को consider करता हूँ. So this is your rectangular cross section, uniform throughout that its cross section is uniform, or you can say this is a prismatic beam. ये क्या है, प्रिज्मेटिक बीम है. जिस प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, जहां पे जिसका क्रॉस सेक्शन जो है थ्रू आउट इट्स लेंथ यूनिफॉर्म रहता है. यू अंडरस्टैंड. तो जहां पे आप ये देखिए किस तरीके कैसे हम इस बीम को कह सकते हैं, हाउ वी विल गेट द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. इस बीम को कैसे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में बीम को करेंगे. सपोज दिस इज योर कपल एक्टिंग एट इट्स टू एंड. एक कपल है that is acting at its two end. So when the couple is acting at the two end, it means that the bending moment is constant. So here what is there, this is the condition of the pure bending, and in the condition of the pure bending you know that bending moment is constant. Suppose this is your section, right? Suppose you will consider some section here. तो इस सेक्शन के ऊपर इफ आई विल से दैट द सिग्मा मैक्सिमम
कि क्या वैल्यू आएगी, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू बाई मैक्सिमम, sigma maximum this is equal to m into y maximum into I. This is your sigma maximum, right? So or you can say sigma maximum this is equal to m upon z. I upon y maximum क्या होगा, z, right? So sigma maximum this is equal to m upon z. अब देखिए, this is a prismatic beam having a uniform cross section, one thing. Second thing is that the couple is acting at its both end, so the bending moment is constant here. तो इसका मतलब है ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट है ये क्या है, कांस्टेंट है, और जेड भी क्या है आपका, जेड भी आपका कांस्टेंट है. दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यू कैन से, एंड इट इज ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ. तो जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट है. दिस इज आल्सो कांस्टेंट. इफ आई विल कंसिडर वन मोर सेक्शन हियर, वन मोर सेक्शन हियर, सो एट एवरी सेक्शन यू विल फाइंड दैट बिकॉज जो आपका बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट के ऊपर होगा, सेम बेंडिंग मोमेंट आपका जहां पे होगा, सेम बेंडिंग मोमेंट आपका जहां पे होगा, बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट. बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, सो बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन, the same bending moment you are getting at this section, so same bending moment you are getting at this section. And the second thing that the Z will also remain same because it is having a uniform cross section. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक बीम है, तो इसमें क्या होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शन जो जहां पे है सेम है, क्रॉस सेक्शन इज आल्सो सेम हियर, क्रॉस सेक्शन इज सेम. So it means that the sigma maximum at this section, and at this section, सिग्मा मैक्सिमम इज सेम. यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब हुआ कि सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज आल्सो कांस्टेंट. जब आपकी m की वैल्यू कांस्टेंट होगी, z की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो आपका जो सिग्मा मैक्सिमम है एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम दैट इज आल्सो कांस्टेंट. तो जहां से आपको जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, that in the pure bending condition, prismatic beam, the prismatic beam in the pure bending condition, that is the beam of uniform strength. You understand? अगर कोई prismatic beam है जिसका area of cross section is uniform throughout its length and it is subjected to the pure bending condition, उसमें कौन सी कंडीशन है, प्योर बेंडिंग कंडीशन है प्रिज्मेटिक बीम में. तो दैट यू कैन से दैट प्रिज्मेटिक बीम दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यू अंडरस्टैंड? तो जो प्रिज्मेटिक बीम है आप कह सकते हैं प्रिज्मेटिक बीम. देखिए ये जो आपको मैं छोटे छोटे कंक्लूजन दे रहा हूं, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द थ्योरीज. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. सो प्रिज्मेटिक बीम ऑफ प्योर बेंडिंग in pure bending condition, prismatic beam in pure bending condition is the beam of uniform strength. ये समझ आ गया आपको? सो प्रिज्मेटिक बीम इन द प्योर बेंडिंग कंडीशन, जो आपका प्रिज्मेटिक बीम है प्योर बेंडिंग कंडीशन में, ये आपका बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यू अंडरस्टैंड?
So here you will get this. So this is clear to you. What is the beam of uniform strength? Beam of uniform strength is that beam which is subjected to the maximum bending stress throughout its length, or you can say which is subjected to the same maximum bending stress throughout its length. Means उस बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी पूरी लेंथ में वो क्या होगी, सेम होगी या सेम होनी चाहिए. वो जो बीम होगी दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यू अंडरस्टैंड? तो बट प्रैक्टिकली यू नो दैट द बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट. बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट. लेकिन अगर हमें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है तो विच बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यू कैन से दैट इज द beam of uniform strength. How we will get the beam of uniform strength? Here I have just taken the example that consider the prismatic beam having the area of cross section uniform throughout its length. You understand? And here is the couple is acting at its both end. This is the pure bending condition. So couple is acting at its both end. So in that case, when the beam is under the pure bending condition, which beam? That is the prismatic beam having the area of cross section throughout its length is uniform. So when that beam is subjected to the pure bending condition, so that beam is called the beam of uniform strength. वो कैसे? ये मैंने आपको बताया कि when it is having a pure bending condition, it means that bending moment at this point, bending moment at this section, bending moment at this section, or bending moment at any section of the beam is same, is constant. It doesn't vary. It is same. You understand? And second thing is that we are considering the prismatic beam of the uniform cross section. So आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या है, सेम है. तो आपको पता है जैसे सिग्मा मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू एम बाई मैक्स अपॉन आई. तो आई अपॉन बाई मैक्स दिस इज इक्वल टू जेड. तो जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा इसका मतलब है जेड की क्या वैल्यू होती है. व्हाट इज जेड? जेड जो आपका है जेड इज इक्वल टू बी इंटू एच स्क्वायर अपॉन 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड. Means b is the width and the h is height. So when the width is same, height is same, because I am saying that this is the uniform cross section. So it means that the z is also same at any section. किसी भी सेक्शन में अगर हम ले लेंगे तो जो z की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी. तो इसका मतलब है कि m जो है ये आपका कांस्टेंट है, Z आपका कांस्टेंट है. और ये किस कंडीशन में कांस्टेंट है? इन द प्योर बेंडिंग कंडीशन. इन द प्योर बेंडिंग कंडीशन इन केस ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम. प्योर बेंडिंग कंडीशन इन प्रिज्मेटिक बीम के केस में M कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिग्मा मैक्सिमम इज कांस्टेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम. तो दैट बीम, दैट प्रिज्मेटिक बीम which is subjected to the pure bending condition, that beam is called the beam of uniform strength. You understand? जहां तक the things are clear to you कि beam of uniform strength क्या है, इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, एक ही फंडा है कि सिग्मा मैक्सिमम that should be constant at any section of the beam. That is the beam of the uniform strength. You understand? How we will get the beam of uniform strength? That I have told you कि आप एक प्रिज्मेटिक बीम ले लीजिए, उसके दोनों एंड्स के ऊपर कपल आप एक्ट करेगा. तो कपल एक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका बेंडिंग मोमेंट जो है कांस्टेंट होगा. दिस इज द प्योर बेंडिंग कंडीशन होगा. प्योर बेंडिंग कंडीशन में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा. और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, और आपकी जो बीम है दैट इज द प्रिज्मेटिक बीम, इट मींस दैट द विड्थ एंड द हाइट एट एनी पॉइंट दैट इज आल्सो सेम. सो यू कैन say the value of the z is constant at any section of the beam. As m is constant, z is constant, it means that the sigma maximum is constant. So up to this point, this is clear to you. You understand? Now, next,
But practically you tell me one thing, practically you tell me whether your bending movement is constant. Practically क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट होता है? Tell me whether the bending movement is constant. No, bending movement is not constant at all. You understand? जो एक्चुअल कंडीशन है, जो प्रैक्टिकल कंडीशन है, उसमें क्या है कि बेंडिंग मूवमेंट आपका कांस्टेंट नहीं है. यू अंडरस्टैंड? तो आप so this is a cantilever beam of the rectangular cross section area. You understand? Rectangular cross section area and the rectangular cross section area, that is the throughout the same. You can say this is also a prismatic beam. Prismatic beam है, cantilever beam. You understand? One end is fixed and one end is free. The load is W acting at this point. इस पॉइंट के ऊपर लोड आपका W एक्ट कर रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक अज्यूम किया था कंडीशंस के, सपोज वी आर हैविंग द प्योर बेंडिंग कंडीशन, एंड प्योर बेंडिंग कंडीशन में मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज ए प्योर बेंडिंग कंडीशन इट मींस दैट द बीम इज ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यू अंडरस्टैंड? दैट बीम इज ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. बट प्रैक्टिकली प्योर बेंडिंग कंडीशन आपको नहीं मिलती है, बिकॉज द बेंडिंग मूवमेंट डजंट कांस्टेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, दैट वेरीज at every section of the beam. Suppose ये भी सेक्शन है, जे सेक्शन है, जे सेक्शन है, तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या करेगा? वेरी करेगा. तो जहां पे देखिएगा कि बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वेरी करेगी. अगर इस पॉइंट, अगर सेक्शन में 1 की बात करूं, सपोज सेक्शन 1 की बात करूं, तो बेंडिंग मोमेंट आपका होगा W इंटू एक्स. बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 और बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2 कितना होगा? अगर ये 2 सेक्शन है आपका, तो दैट इज W इंटू x2. इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 3 ये आपका 3 है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है सेक्शन 3 कितना होगा? ये आपका होगा W इंटू x3. सो हेयर यू हैव सीन प्रैक्टिकली द बेंडिंग मोमेंट इज नॉट कांस्टेंट. सो आपका बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट नहीं है. जब आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है, तो टेल मी, क्या आपकी जो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू होगी एट सेक्शन 1, 2, 3 और एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, क्या वो कांस्टेंट होगी? नहीं. सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज यू नो सिग्मा मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू m इंटू जेड. सिग्मा मैक्सिमम क्या है? m इंटू जेड. अब देखिए ये जो m है, m डजंट कांस्टेंट. ये m तो आपका कांस्टेंट नहीं है इस केस में. m क्या है? कांस्टेंट नहीं. बट z आपका कांस्टेंट है. z क्या है? z आपका कांस्टेंट है. आई एम अज्यूमिंग द प्रिज्मेटिक बीम. यू अंडरस्टैंड? आई एम अज्यूमिंग द प्रिज्मेटिक बीम. तो प्रिज्मेटिक बीम में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ. तो जो z की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी. लेकिन हमारा जो m है इस केस में प्रैक्टिकली हमारा m कांस्टेंट नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपको पता है कि ट्रांसवर्स लोड बीम के ऊपर एक्ट करेगा, सो व्हेन द ट्रांसवर्स लोड विल एक्ट ऑन द बीम, देयर द शियर फोर्स विल डेवलप. क्या होगा? शियर फोर्स जहां पे डेवलप होगी, और जो शियर फोर्स डेवलप होगी उसके कारण क्या होगा? जो आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा वो सेम नहीं रहेगा. यू अंडरस्टैंड? जो आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा दैट इज नॉट सेम, बिकॉज द शियर फोर्स विल डेवलप
तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स आपकी डेवलप करेगी और बेंडिंग मोमेंट आपका सेम नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इस कंडीशन में अगर मैं देखूं कि प्रिज्मेटिक बीम व्हेन इट इज नॉट अंडर द प्योर बेंडिंग कंडीशन, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं, पहले केस में मैंने प्रिज्मेटिक बीम को अंडर प्योर बेंडिंग कंडीशन लिया था। आई सेड दैट द प्रिज्मेटिक बीम सब्जेक्टेड टू अंडर द प्योर बेंडिंग कंडीशन, दैट बीम इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और जहां पर जो आपकी प्रिज्मेटिक बीम है, here I have considered practically I have considered that bending moment is not constant. So it means that the prismatic beam under different bending conditions, under different bending moment, that is not a pure uniform, that is not a beam of uniform strength. You understand? तो अगर जहां से आप देखें, इसको मिटा देते हैं, तो इसमें आपने देखा कि सिग्मा मैक्सिमम जो है, क्योंकि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमारा सिग्मा मैक्सिमम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए था। इस सेक्शन के ऊपर भी सेम चाहिए, इस सेक्शन के ऊपर भी सेम चाहिए, और इस सेक्शन के ऊपर भी मुझे सिग्मा मैक्सिमम सेम चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो इस सेक्शन के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर वो क्या है, वो सेम नहीं है। तो m आपका कांस्टेंट नहीं है, जो m आपका किसके बराबर होता है, W इंटू एक्स, जो आपका कांस्टेंट नहीं है। बट z आपका क्या है, z आपका कांस्टेंट है, तो j आपका कांस्टेंट है और j आपका डज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। यू अंडरस्टैंड। हाउ वी विल मेक दिस बीम, अब इस बीम को हाउ वी विल मेक दिस बीम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब मुझे बताइए, इस बीम को अगर मुझे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे जैसे W इंटू एक्स की वैल्यू वेरी करती जाएगी, सपोज अगर आपका W इंटू एक्स बेंडिंग मोमेंट वेरी लीनियरली करता है, तो हमारी जो Z की वैल्यू होगी वो भी वेरी लीनियरली करनी चाहिए। अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिकली वेरी करता है तो Z की वैल्यू भी पैराबोलिक वेरी करनी चाहिए। अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, डबल्ड है, इसकी वैल्यू डबल हो जाती है, तो Z भी हमारा डबल होना चाहिए। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ दिस m अपॉन Z दैट शुड बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए इसको बनाने के लिए? रेशियो, जो आपकी रेशियो है रेशियो आपकी m इंटू जेड की, रेशियो आपकी m इंटू जेड की, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो रेशियो आपकी किस तरीके से कांस्टेंट होगी? m अगर आपका डबल होगा तो z भी आपका डबल होना चाहिए। m अगर आपका ट्रिपल होगा तो z की वैल्यू भी ट्रिपल होनी चाहिए। जैसे जैसे आपका m वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा z वेरी करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड। तभी तो हमें ये रेशियो जो है m अपॉन z ये हमें कांस्टेंट मिलेगी। यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द वे हाउ वी विल मेक द बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। किसी भी बीम को हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, हम उसको बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि जिस रेशियो प्रोपोर्शन से आपकी m की वैल्यू वेरी करेगी, विद द सेम रेशियो प्रोपोर्शन हमारी z की वैल्यू वेरी करनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड। अगर हमारा m जो है वो लीनियरली वेरी करता है तो z भी हमारा लीनियरली वेरी करना चाहिए। इफ अवर m बेंडिंग मोमेंट दैट वेरीज पैराबोलिकली, z शुड आल्सो वेरी पैराबोलिकली। अगर m आपका डबल होता है तो हमारा z भी डबल होना चाहिए, तभी तो ये रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा।
तभी तो आप कह सकते हैं कि m/z रेशो दैट इज कांस्टेंट तभी रहेगा जिस तरीके से हमारा m होगा और z हमारा वेरी करेगा। अब जहां तक तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर दैट व्हाट इज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यू अंडरस्टैंड दैट कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वो बीम है जिस बीम के every section, every point throughout its length, bending stress, maximum bending stress that should be same. उसकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सेम होनी चाहिए। अब जो आपकी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द m अपॉन z। m के ऊपर डिपेंड करती है और z के ऊपर। m क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट है और z आपका क्या है सेक्शनल मॉडुलस। सेक्शनल मॉडुलस हमें कहां से मिलता है द ज्योमेट्री ऑफ द बीम। क्या हमारी बीम रेक्टेंगल है, क्या हमारी बीम सर्कुलर है, क्या हमारी बीम आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, लाइक दैट। तो जहां पे आई एम कंसिडरिंग दैट आई एम हैविंग द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो जहां से आपने देखा कि जो हमारी सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर हमारी m की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो प्रिज्मेटिक बीम में हमारा z तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज उसका विड्थ और उसका हाइट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम विल सेम, तो उसमें तो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो वेरी फैक्टर करेगा वो क्या करेगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमारा वेरी करेगा। प्रैक्टिकली बेंडिंग मोमेंट हमारा सेम किसी भी सेक्शन के ऊपर नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड। इन द प्योर बेंडिंग कंडीशन हमने लिया है, बट प्योर बेंडिंग कंडीशन ये आपका थ्योरेटिकल यू कैन से, बट प्रैक्टिकली क्या होगा कि जब भी लोड ट्रांसवर्स लोड बीम के ऊपर एक्ट करेगा तो वहां पे शेयर फोर्स डेवलप होगी, और शेयर फोर्स डेवलप होगी तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा वो उसका चेंज होगा। यू अंडरस्टैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, इसका बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है, रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस क्या है इसकी, वो दैट इज क्लियर नाउ। Now the next part which I am going to tell you here, that is the design process. अब इसका डिजाइन प्रोसेस, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि अगर हमारे पास कोई बीम है, उस बीम को हमें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में हमें डिजाइन करना है, बनाना है, तो उस बीम को हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में किस तरीके से डिजाइन करेंगे। यू अंडरस्टैंड। और ये जो सेकंड पार्ट है ये आप ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें एक तो आपको एक बहुत एक अच्छा कंसेप्ट आपको मिलेगा कि आप किसी भी बीम को बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में हाउ वी विल कन्वर्ट, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका डिजाइन प्रोसेस करेंगे। और इसके साथ जो नेक्स्ट आपका होगा, इसके बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो कि कन्वेंशनल्स भी हैं, यूपीएससी एग्जाम में भी आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। बट मेन जो हमारा फोकस है वो क्या है, हाउ वी विल मेक द पर्टिकुलर बीम द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, दैट इज द डिजाइन प्रोसेस ऑफ दिस। सो लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखिए डिजाइन प्रोसेस, इसमें कौन सा डिजाइन प्रोसेस होगा कि टू मेक द पर्टिकुलर बीम दैट इज ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, in the beam so in the beam you have to design
it in such a way that Z will change as the M. M means bending moment, Z means section model. M will change in the beam, or you can say, or M upon Z, ये जो आपकी रेशो है, that should be constant. ये आपकी that should be constant, ये आपकी constant रहनी चाहिए. That ratio should be constant. तो ये रेशो आपकी constant रहनी चाहिए. अब now we are designing the beam. Suppose करो ये आपका बीम है, ये आपका कैंटिलीवर बीम. दिस इज योर कैंटिलीवर बीम. ये आपका कैंटिलीवर बीम है, एंड वी आर डिजाइनिंग दिस बीम, द बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. अब हम इस बीम को बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में क्या कर रहे हैं, डिजाइन करना है. दिस इज द लोड W, दिस इज the length of the beam. So this is the cantilever beam, and we have to design this beam of the uniform strength. तो इसमें जो हमारा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हमारा M तो इसमें चेंज होगा. यू अंडरस्टैंड. जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो इस बीम में चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. तो इस रेशियो को कांस्टेंट करने के लिए इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वेरी द जेट. हमें जेट की वैल्यू को जेट शुड बी वेरीड एज द M वेरीज. जैसे जैसे M वेरीज करता जाएगा हमारी जेट की वैल्यू वेरी करनी जाएगी. हमें जेट की वैल्यू क्या है, वेरी करेगी. तभी तो ये रेशो आपकी M बाई जेट की जो है रेशो कांस्टेंट रहेगा. अब जेड आपको पता है, जेड आपका क्या है, V इंटू एच स्क्वायर बाई 6. आई एम टेकिंग हियर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेक्शनल मॉडुलस इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जो मैं लिख लेता हूं बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. इस बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का. यू अंडरस्टैंड. सो इट मीन्स दैट देयर आर द टू पैरामीटर्स हियर. वन पैरामीटर इज द विड्थ एंड द सेकंड पैरामीटर इज द हाइट. तो इसका मतलब है हमें ये पैरामीटर्स चेंज करेंगे तभी तो हमें जेट की वैल्यू वेरी करेगी. आइदर यू वेरी दिस पैरामीटर विड्थ एंड कीप द पैरामीटर h एज ए कांस्टेंट और फिक्स्ड. b को आप वेरी कीजिए, विड्थ को आप वेरी कीजिए, चेंज कीजिए, और h जो पैरामीटर है, हाइट है इसकी बीम की, उसको आप क्या करें, फिक्स कर दें, उसको आप कांस्टेंट कर दें. या दूसरा ये है कि आप h को फिक्स करें. ये जो पैरामीटर है h, हाइट जो है बीम की, इसको आप फिक्स कीजिए. तो जो दूसरा पैरामीटर होगा इसका बीम का, उसको आप वेरी कर लीजिए. विड्थ को आप चेंज कर लीजिए, वेरी कर लीजिए. तो क्या हम दोनों पैरामीटर्स को भी b और h को एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट. बट ऐसा करने से क्या होगा,
ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम जब दोनों पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो हमारी जो डिज़ाइन प्रोसेस है या हमारा जो डिज़ाइन है वो जो एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो जाएगा। मीन्स हमें उसका विड्थ भी चेंज करेंगे, बीम का हाइट भी चेंज करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो डिज़ाइन, बीम का जो डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम दो में से एक पैरामीटर को चेंज करेंगे। एक पैरामीटर भी तो चेंज करने से हमारा जेड का वैल्यू चेंज होगा। सो वन पैरामीटर चेंज करेंगे और एक पैरामीटर को हम फिक्स रखेंगे। तो इसमें दो केस होंगे। वन केस क्या होगा, विड्थ आप क्या करें, वेरी करें और हाइट को आप कांस्टेंट कर दें। एक पैरामीटर ये है केस फर्स्ट। तो इसमें जो केस फर्स्ट हम लेंगे, सपोज जो हमारा केस फर्स्ट होगा उसमें क्या है, केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट बेरिंग विड्थ, इसको बता दीजिए, बेरिंग विड्थ हाइट कांस्टेंट, पहला केस बेरिंग विड्थ हाइट कांस्टेंट। केस सेकंड जो डिजाइन का है, बेरिंग हाइट एंड विड्थ कांस्टेंट, right? So these are two cases which we will read here. ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर बीम को आपने डिजाइन करना है कि वो पर्टिकुलर बीम हमारी बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में किस तरीके से उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम उसको डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए हमें जो जेड की वैल्यू है, बिकॉज आपको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट शुड बी सेम एट एवरी सेक्शन ऑफ द बीम, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू एम बाई जेड। एम तो इसमें वेरी करेगा, दैट वी कैन नॉट स्टॉप इट। एम की वैल्यू को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो वेरी करता जाएगा। तो एम की वैल्यू वेरी करेगी, तो उस रेशो को एम बाई जेड को हमें कांस्टेंट करने के लिए उस रेशो को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जेड को वेरी करना पड़ेगा। जेड की जो वैल्यू है उसको वेरी करना पड़ेगा, सेक्शनल मॉडल्स को वेरी करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रेशो कांस्टेंट होगा और हमारी बीम जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होगी। अब जेड को वेरी करने के लिए, जैसे आपको पता है जेड इज इक्वल टू, जो हमारा जेड का वैल्यू है ये लिख लेते हैं जहां पे, जेड दिस इज बी इंटू एच स्क्वायर अपॉन 6। तो जहां पे आपने देखा कि जेड में देयर आर टू पैरामीटर्स, वन पैरामीटर इज द विड्थ एंड द सेकंड पैरामीटर इज द हाइट। हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, बिकॉज दिस इज द सेक्शनल मॉडल्स फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द कैंटिलीवर बीम हैविंग द rectangular cross section and I have to design this beam as a beam of uniform strength। मुझे इस बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, डिजाइन करना है। तो अगर जेड की वैल्यू के ऊपर मैं नजर मारूं तो मेरे पास एक पैरामीटर बी है और एक पैरामीटर हाइट है, दो पैरामीटर्स हैं। इसमें से मैं किसी एक पैरामीटर को फिक्स रखूंगा और दूसरे पैरामीटर को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। ये पर्टिकुलर बीम है, इसका मैं विड्थ को क्या करता हूं, विड्थ को सेम रहना देता हूं, लेकिन मैं उसकी हाइट को चेंज करूंगा सो दैट मेरी जेड की वैल्यू जो है वे वेरी करे। तब दूसरा केस होगा कि मैं हाइट को क्या करूंगा, वेरी करूंगा और विड्थ को चेंज करूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा करने से क्या होगा कि हम जो एक डिजाइन प्रोसेस है, हमारी बीम जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में।
तो 1 बाई 1 ये दोनों जो प्रोसेस है, जो दोनों केस हैं, ये हम स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर बीम, अगर ये कैंटिलीवर बीम है, तो अगर मैं बेयरिंग विड्थ की बात करता हूं, पहला आई एम चेंजिंग द विड्थ एंड कीपिंग द हाइट कांस्टेंट। विड्थ को चेंज करता हूं और हाइट को मैं कांस्टेंट रखता हूं। सो कंसिडर ए कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम आप कंसिडर करें। द विड्थ ऑफ द बीम इज बी। तो बीम की जो विड्थ है वो क्या है, बी है, और हाइट इसकी कितनी है, एच है। यू अंडरस्टैंड, बीम का विड्थ कितना है, बी है, और हाइट जो है इसका एच है। तो इसका हाइट जो है एच है। तो मैं कहता हूं कि ये आपका बीम है। पहला केस लेके चलता हूं मैं। इस बीम का जो हाइट जो इस पॉइंट के ऊपर है वो कितना है, एच। यू अंडरस्टैंड, इस बीम का जो हाइट है दिस इज इक्वल टू एच। तो पहला केस कर रहे हैं हम, दूसरे केस को इसको बंद करते हैं। तो पहला केस हमने लिया बेयरिंग विड्थ विद कांस्टेंट हाइट। सो आई हैव कंसिडर द कैंटिलीवर बीम जिसका हाइट जो है वो कांस्टेंट है। सो से एच इज द हाइट ऑफ द बीम। दिस इज द फ्रंट व्यू आई हैव ड्रॉन हियर। और जो इसकी विड्थ है, मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम विड्थ एट द फिक्स एंड, मैक्सिमम विड्थ at the fixed end, maximum width at the fixed end B है। B के ऊपर जो उसका होगा, फिक्स एंड के ऊपर जो बीम का विड्थ है वो मैक्सिमम है, वो B है। यू अंडरस्टैंड। सपोज आई विल टेक ए सेक्शन हियर। मैं एक सेक्शन ले लेता हूं। सो दिस इज द सेक्शन हियर, दैट इज बाई सेक्शन, राइट। ये आपका क्या है, बाई सेक्शन है एस पॉइंट के ऊपर। दिस इज द बाई सेक्शन। एक अगर, क्योंकि मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कि ये मैं बीम जो है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसको डिजाइन कर रहा हूं। तो इफ आई से इफ द बीम, अगर ये कंडीशन है, बीम ऑफ, इफ द बीम इज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, तो अगर आपका बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब ये होगा सिग्मा मैक्सिमम एट fixed end, this is equal to sigma maximum at by section। जो हमारी कंडीशन है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, वो क्या है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू है, वो सेम है। अगर सिग्मा मैक्सिमम मेरा फिक्स एंड के ऊपर, जो मेरा सिग्मा मैक्सिमम फिक्स एंड के ऊपर होगा, तो इसका मतलब वही वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम की मेरी बाई एंड के ऊपर होगी, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग दैट दिस बीम इज ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। क्योंकि मुझे यही तो डिजाइन करना है, तो मैं इसको एक ये कंसिडर करके स्टार्टिंग से ले रहा हूं कि ये मेरी बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो सिग्मा मैक्सिमम एट ये जो आपका होगा फिक्स एंड, वो कितना होगा, एम बाई मैक्स अपॉन आई, राइट। सो दिस इज इक्वल टू एम बाई मैक्सिमम अपॉन आई। ये आपका बाई सेक्शन, ये आपका हो गया फिक्स एंड के ऊपर।
तो फिक्स एंड के ऊपर जो आपका है एम बाई माई एक्स, जो सिग्मा मैक्सिमम फिक्स एंड के ऊपर होगा वही इसके बराबर होगा, और सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बाई मैक्सिमम अपॉन आई फिक्स एंड, दिस इज इक्वल टू एम बाई मैक्सिमम अपॉन आई एट द बाई सेक्शन, राइट, जिस सेम होगा। अब चलिए आगे इसको मिटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, m अपॉन जेड, ये क्या होगा i अपॉन बाई मैक्सिमम m अपॉन जेड एट फिक्स एंड, दिस इज इक्वल टू m अपॉन जेड at y section. You understand? M upon z at y section. You understand this? तो अगर मैं ये लेके चलता हूं जहां से लेके ये जो सेक्शन है, जहां पे एट द डिस्टेंस x के ऊपर है, यू अंडरस्टैंड। तो m जो बाई सेक्शन के ऊपर होगा, m जो बाई सेक्शन के ऊपर होगा, m बाई सेक्शन में क्या होगा, m एट y सेक्शन किसके बराबर है, w इंटू एक्स, राइट। और m एट फिक्स एंड, m एट फिक्स्ड एंड, दिस इज इक्वल टू w इंटू ये जहां से लेके जहां तक लेंथ कितना है, l इज द लेंथ ऑफ द बीम। जब वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो m एट फिक्स एंड कितना होगा, w इंटू l। व्हाट इज योर जेड, मैंने कहा फिक्स एंड के ऊपर b विड्थ जो थी वो क्या है, b है, h तो मैंने इसकी हाइट को कांस्टेंट रखा है दिस, तो सेक्शनल मॉडुलस एट फिक्स एंड दिस इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर अपॉन 6। जैक आपको क्लियर हो गया पॉइंट, बी एच स्क्वायर अपॉन 6। सो दिस इज इक्वल टू m क्या है एट y सेक्शन, w इंटू एक्स। जेड क्या होगा, एज देखिए कंडीशन क्या थी कि हाइट जो हमारी फिक्स है और हमारा विड्थ जो है वेरी करता है। सपोज करता हूं मैं कि एट y सेक्शन, जहां पे लिख लीजिए एट बाई y सेक्शन, विड्थ आपकी कितनी है, विड्थ है आपकी b डैश, बिकॉज विड्थ आपकी वेरी कर रही है, राइट, योर विड्थ इज वेरिंग, सपोज b डैश, तो ये आपका आएगा b डैश एट y सेक्शन, h तो आपका कांस्टेंट है, h स्क्वायर अपॉन 6, राइट। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी सारी, राइट। तो देयरफॉर b डैश किसके बराबर आएगा, b इंटू एक्स अपॉन l। यू अंडरस्टैंड, ये आपको बेरिंग विड्थ की वैल्यू मिल जाएगी b डैश। यू अंडरस्टैंड, b डैश दिस इज इक्वल टू b इंटू एक्स अपॉन l। तो दीज थिंग्स आर क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट डिजाइन प्रोसेस, it is clear. What I have taken, this is a cantilever beam fixed at one end. I am taking the case first, keeping the height constant and changing the width of the beam. तो height तो इसका constant रहेगा h, और beam का जो width है वो हमें वेरी करना है, so that हमारी z की वैल्यू वेरी कर सके as जैसे हमारा m वेरी करेगा, z की वैल्यू वेरी कर सके, और हमारी जो रेशियो है वो कांस्टेंट आए, जिससे हमारा सिग्मा मैक्सिमम एट एनी पॉइंट एनी सेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो,
और हमारी बीम जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बन जाए। यू अंडरस्टैंड? तो पहले केस में मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव टेकन, आई एम जस्ट टेकन ए कैंटिलीवर बीम एंड टेकन ए सेक्शन बाई वाई। इस सेक्शन बाई वाई जो है दैट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ दिस। यू अंडरस्टैंड? तो इन दोनों केसेस में क्या किया, इसका बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट एट द बाई सेक्शन दिस इज w इंटू एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड दैट इज w इंटू l। तो m की वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें सेक्शनल मॉडुलस, लेट अस से दैट एट सेक्शन दिस बाई हमारी जो बिड्थ जो थी वो जैसे हमारी b जहां पे थी, जहां पे चेंज करिए, से आई एम सेइंग दैट द बिड्थ b डैश इज एट द पॉइंट एट दिस सेक्शन बाई। तो हमारा जो कंडीशन थी, एज आई एम अज्यूमिंग दिस, हम क्या कर रहे हैं, इसको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर इस बीम को बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है हमें, तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, जिस सेक्शन के ऊपर आपने चेक करना है कि सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या फिक्स एंड की वैल्यू के बराबर है या नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा जो सिग्मा मैक्स होगा एट द फिक्स एंड एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम दैट शुड बी सेम। इसलिए मैंने लिखा सिग्मा मैक्सिमम एट द फिक्स एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम एट द बाई सेक्शन। तो सिग्मा मैक्सिमम फिक्स एंड के ऊपर क्या था, m इंटू बाई मैक्सिमम अपॉन आई फिक्स एंड दिस इज दिस। m की वैल्यू फिक्स एंड के ऊपर जो निकाली कैलकुलेट कर लो, और h और जो आपकी z की वैल्यू थी, क्योंकि फिक्स एंड के ऊपर आपकी b की भी विड्थ b है, विड्थ का b ही है, और हाइट आपकी कांस्टेंट है, वो तो h ही रहेगी सारी थ्रू आउट द लेंथ। तो ये आपका आ गया bh स्क्वायर अपॉन 6 z की वैल्यू। इसी तरीके से हम सेक्शन xx की y की बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट जहां से लेके जहां तक कितना आएगा, w इंटू x। एंड व्हाट इज द सेक्शनल मॉडुलस हियर, इफ आई एम सेइंग दैट द विड्थ ऑफ द बीम एट द सेक्शन बाई दिस इज b डैश, तो दिस इज b डैश इंटू h स्क्वायर अपॉन 6। तो इसको काट के तो b डैश की वैल्यू हमें मिला। अब देखिए b डैश की वैल्यू यहां से देखिए आप, तो b डैश की वैल्यू क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो b की वैल्यू हमारी जो है वो किस तरीके से वेरी करेगी, एक स्ट्रेट लाइन वेरी करेगी। सपोज ये अगर मैं इसका टॉप व्यू डालूं, ये आपका टॉप व्यू है, इसका विड्थ मैं इसकी ड्रा करता हूं, तो इसके जो विड्थ की वैल्यू होगी वो किस तरीके से वेरी करेगी, इसकी वेरी करेगी वैल्यू इस तरीके से, ये विड्थ b अगर जहां पे है तो ये इस तरीके से वेरी करती जाएगी, राइट। इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इस पॉइंट के ऊपर अपना b डैश निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर b डैश निकालना है, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ले आप, तो इसकी b डैश की वैल्यू जो है वो क्या है, वो चेंज होती जाएगी। और जैसे ही b डैश की वैल्यू चेंज होगी, वैसे आपका क्या होगा, सेक्शनल मॉडुलस चेंज होगा। और जो सेक्शनल मॉडुलस चेंज होगा तो साथ में क्या होगा, अगर C के ऊपर भी बेंडिंग मोमेंट क्या है, चेंज होगा, तो C के ऊपर बेंडिंग मोमेंट आपका चेंज होगा। अगर सपोज करो सेक्शन आपकी J है, तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा, लेकिन इसके साथ जो सेक्शनल मॉडुलस होगा C के ऊपर भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो B डैश की वैल्यू है वो C के ऊपर इतनी होगी, इस तरीके से। ये आपका B डैश इस पॉइंट। अगर मैं B डैश इसकी वैल्यू की बात करूं तो जहां पे आपका J होगा, अगर मैं जहां की बात करूं तो J आपका B डैश जहां पे होगा। यू अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे आपकी बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा, आप देखिए जो B डैश की वैल्यू है उसी तरीके से आपकी चेंज होती जाएगी स्ट्रेट लाइन में। तो ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। B डैश इज इक्वल टू B इंटू एक्स अपॉन एल। जहां से हमें B डैश की वैल्यू मिलेगी जिस सेक्शन के ऊपर आपने सिग्मा मैक्सिमम निकालना है। यू अंडरस्टैंड? तो सिग्मा मैक्सिमम जो जहां पे होगा, अगर मैं B डैश की वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर J पुट करूंगा तो मेरा सिग्मा मैक्सिमम जहां पर सेम आएगा। यू अंडरस्टैंड? Z की वैल्यू हमारी
सेम आएगी। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इस तरीके से ये पहला डिजाइन हो गया, केस हमारा फर्स्ट, जब हम विड्थ को वेरी करेंगे और हाइट को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो उस केस में हमारा डिजाइन क्या होगा कि कौन सी इक्वेशन हमें बी डैश की मिलेगी। दिस इज इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट्स कंसेप्ट वेरी वेल। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड केस भी स्टडी कर लेते हैं आज। सेकंड केस में क्या था कि विड्थ को आप कांस्टेंट रखिए। सेकंड केस में यू कीप द विड्थ कांस्टेंट एंड चेंज द हाइट। तो सेकंड केस क्या था इसका, डिजाइन ऑफ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। केस सेकंड, राइट, क्या था, कीपिंग द width constant and vary the height. This is the second case. हाइट को वेरी करो और विड्थ को कांस्टेंट रखो। तो ये एक कोई कैंटिलीवर बीम है, ये इसका मैं टॉप व्यू बना लेता हूं। सपोज दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द बीम, राइट, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द बीम। अब मुझे इसका हाइट तो पता नहीं है कि इसका एलिवेशन किस तरीके से ड्रा होगा, क्या ये पैराबोलिक होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा, दिस आई डोंट नो बिकॉज हियर आई एम चेंजिंग द हाइट एंड दिस आई हैव टू सी व्हेन आई विल ड्राइव द इक्वेशन। तो ये मेरा टॉप व्यू है, तो मैं कहता हूं कि एट द फिक्स एंड के ऊपर, एट द फिक्स एंड जो इसका विड्थ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो बीम का विड्थ तो दिया है, कीपिंग द विड्थ कांस्टेंट, सपोज से बी इज द विड्थ ऑफ द बीम। तो जहां पे हम लिख लें बी इज द विड्थ ऑफ द बीम, जो मैं कैंटिलीवर बीम का ही ड्रा करूंगा। दिस इज द टॉप व्यू, आप कह सकते हैं दिस इज द टॉप व्यू, राइट। और जो h है, h जो बीम की हाइट होगी वो तो फिक्स एंड के ऊपर हाइट जो है तो फिक्स होगी, राइट। सो h इज द हाइट ऑफ द बीम एट द फिक्स एंड। तो इसका जो लेंथ है बीम का वो L है, वही जहां पे आप एक सेक्शन ले लीजिए, ये आपका लोड W है, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस आपका X है। यू अंडरस्टैंड, सेम है बाई सेक्शन। तो मुझे बताइए सिग्मा मैक्सिमम एट द फिक्स एंड
if the beam is uniform, if the beam is of the uniform strength, यही तो हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ये लिख लेते हैं। As the beam is of uniform strength, then sigma maximum at fixed end is equal to sigma maximum at YY section। यही होगा। सिग्मा मैक्सिमम फिक्स एंड के ऊपर जो है ये होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम एट फिक्स एंड क्या होगा? एम आई फिक्स्ड एंड is equal to m at y section, or you can say m upon z fixed end is equal to m on z at y section। You understand? तो m आपका फिक्स एंड के ऊपर क्या होगा? m आपका फिक्स एंड के ऊपर होगा w इंटू एल, राइट? ये हो गया ना, इसमें लिख लो m एट फिक्स एंड और m एट राइट। तो फिक्स एंड आई अपॉन वाई मैक्सिमम, ये आप सीधा जेड लिख लो इसको, आप आई अपॉन वाई मैक्सिमम, इसको नीचे जेड। सो दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन जेड, राइट? अब देयरफॉर डब्ल्यू इंटू एल फिक्स एंड के ऊपर क्या होगा? बी एच स्क्वायर वाई सिक्स, बी एच स्क्वायर वाई सिक्स। फिक्स एंड के ऊपर आपका जो विड्थ है वो b है, हाइट क्या है इसकी? h है फिक्स एंड के ऊपर, तो दिस इज दिस, बट दिस इज इक्वल टू w इंटू एक्स। अगर मैं सेक्शन की बात करूं हाइट की, तो हाइट आपका वेरी कर रहा है। अगर फिक्स एंड के ऊपर h है तो सपोज मैं कहता हूं कि आप बाई बाई डैश के ऊपर, बाई बाई के ऊपर एट सेक्शन बाई बाई हाइट h किसके बराबर है? सपोज h डैश के बराबर है। h कितना है? h डैश है, तो मैं h डैश लिखूंगा, तो ये आ गया b। तो आपका b क्या है? b तो आपका फिक्स है, तो b ही रहेगा। h आपका वेरी ही करेगा, तो h डैश स्क्वायर अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल, b और b कैंसिल, w और w कैंसिल, राइट? Therefore h डैश स्क्वायर, h डैश स्क्वायर क्या आएगा? h डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x इंटू h स्क्वायर अपॉन l, राइट?
R H dash, this is equal to under root of x into h square upon L। तो जहां आप कह सकते हैं h डैश, h स्क्वायर को बाहर ले जाओ, h अंडर रूट ऑफ x अपॉन L, राइट। h डैश दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन L। So this is the equation h dash. So this is the equation. अगर आप h dash कीजिए, this is very important formula, याद रखिए, h dash this is equal to h into अंडर रूट ऑफ x अपॉन L। x अपॉन L का मतलब ये है कि अगर ये बाई सेक्शन के ऊपर निकाल रहे हैं, जो इसका जहां से डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू x। अगर इसके ऊपर निकालते हैं तो जहां से जहां तक डिस्टेंस होगा वहां पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे और L की वैल्यू लेंथ ऑफ द बीम। तो ये आपका दूसरा कंडीशन आया। एंड इफ यू विल सी दिस इक्वेशन, तो ये आपकी इक्वेशन जो होगी पैराबोलिक इक्वेशन होगी। ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है जो हाइट आपकी होगी, जो आपकी हाइट होगी वो किस तरीके से वेरी करेगी? वो आपकी हाइट जो है वो पैराबोलिकली वेरी करेगी। तो अगर मैं इसको बता देते हैं कि कौन कैसे हाइट वेरी करेगी, पैराबोलिक हाइट वेरी करेगी। तो इस तरीके से देखिए, राइट। सो दिस हाइट विल वेरी पैराबोलिकली। सपोज करो ये बीम है, मैं कहता हूं दूसरी बीम की हाइट जहां से लेके जहां तक है h, तो इसकी हाइट जो होगी वो पैराबोलिकली वेरी करी गई। राइट। सो its हाइट विल वेरी, इसको पूरी बना लेते हैं, जहां तक ले आइए फिर। तो इसकी हाइट जो है वो इस तरीके से पैराबोलिक वेरी करेगी, और ये जो आपकी जहां से लेके जहां तक ये हाइट होगी ये आपकी h डैश होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपका डिजाइन प्रोसीजर था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई भी बीम है, उस बीम को आपने बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सेक्शन मॉडल्स को वेरी करना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वेरी होगी, लेकिन सेक्शन मॉडल्स आपको वेरी करेंगे तभी जिस यू कैन से जिस प्रोपोर्शन से आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वेरी होगी, उसी प्रोपोर्शन से हमें सेक्शन मॉडल्स को वेरी करना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी जो रेशो है m अपॉन जेड दैट शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि वो रेशो आपकी m बाई जेड कांस्टेंट आनी चाहिए थ्रू आउट द बीम। तभी बीम को हम कह सकते हैं वो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी। मीन्स आपका सिग्मा मैक्सिमम एट एवरी सेक्शन ऑफ द बीम इज कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने डिजाइन किया कि कैसे एक पर्टिकुलर बीम, कोई भी बीम है उसको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है, तो उसे हम कैसे डिजाइन करेंगे। उसे डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया कि जेड की वैल्यू को हमने वेरी करना था। अब जेड की वैल्यू वेरी करने के लिए हमारे पास जेड में दो पैरामीटर्स हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो जहां पे एक विड्थ पैरामीटर है और एक आपका हाइट पैरामीटर। दोनों पैरामीटर को हम एकदम इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो सारा डिजाइन होगा बीम का कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, उसकी विड्थ भी चेंज करना पड़ेगी, उसकी हाइट भी चेंज करना पड़ेगी। इसलिए हमें जेड की वैल्यू को चेंज करने के लिए, तो ऐसे हमारा जो डिजाइन होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
सो व्हाट वी हैव डन कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन थी जिसमें हम बिट्स को क्या करते हैं, वेरी करते हैं और हाइट को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज द केस फर्स्ट। सिर्फ सिंगल पैरामीटर हम चेंज करेंगे, और दूसरे में हम हाइट को चेंज करेंगे और विड्थ को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से मैंने आपको डिजाइन प्रोसेस इसका समझा दिया है कि किस तरीके से बीम हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होगा और किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं सेपरेट इसका छोटे छोटे लेक्चर बनाने वाला था कि पहले आपको सिर्फ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बताऊं और फिर उसके बाद जो है मैं इसका डिजाइन प्रोसेस बताऊं। रीजन ये है कि मोस्टली आई हैव जो मैंने अपने लेक्चर्स में फाइंड आउट किया है, इंप्रेशंस तो आते हैं क्योंकि लेक्चर एक आपको अगर पढ़ाना सही है तो डिटेल में तो देना पड़ेगा। अब 5, 10, 15 मिनट का तो वो जो लेक्चर आप लोग चाहते हैं तो वैसा तो बड़ा मुश्किल है बनाना। उसमें तो आपको जस्ट वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो एक चीज़ें देनी चाहिए, जो एक पढ़ाने का तरीका है सिस्टम में। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें यही किया कि आप लेक्चर स्टार्ट करते हो, आगे देखते नहीं हो, जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है क्या नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू सी। तो पहले तो यही था कि 15-20 मिनट का वो मैं डेफिनेशन वाला अलग बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं डिज़ाइन इसका प्रोसेस अलग बनाता हूँ। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि कम से कम आप लोग देखते, लोगों के पास जाता। लेकिन वो मुझे लगा नहीं उसका कुछ, क्योंकि ये चीज़ें इनकनेक्टेड थी कि पहले वो डालता फिर 4-5 दिन के बाद इसको डालता, तो वो चीज़ें इसमें कनेक्ट नहीं होनी थी। वो लेक्चर तो जरूर बन जाता मेरा और उसमें हो सकता है आप लोग ज़्यादा लोग देखते उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लेक्चर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने इसको ये जो लेक्चर इसमें है दिया मैंने, इसमें एक आपको पहले डिज़ाइन व्हाट इज़ द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा मैंने इसका जो डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं एक न्यूमेरिकल जरूर इसका करूंगा, लंबा होगा बट आई विल डू इट। अदरवाइज मैं आई कैन स्किप इट आल्सो, आई विल गो डेफिनेटली, आई विल जस्ट चेंज माई सेल्फ टू दिस। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा कंपोजिट बीम का, उसके ऊपर भी जा सकता था मैं, लेकिन जो मेरा अपने मन का है कि उसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ न्यूमेरिकली, हाउ प्रैक्टिकली वी विल चेंज द बीम इनटू बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, right? So thank you very much. This is all today, and next lecture I will take tomorrow.